لو جہاد کے معاملے پر بریلی کی درگاہ کے اعلیٰ حضرت نے فتویٰ جاری کیا ہے۔ فتوے میں کہا گیا ہے کسی دوسرے مذہب کی لڑکی سے زبردستی اس کا مذہب تبدیل کرانا جائز نہیں ہے۔ دوسرے مذہب کی لڑکی سے زبردستی نکاح کرنا بھی ناجائز ہے۔ آپ کو بتا دیں بریلی میں لو جہاد کا پہلا معاملہ درج ہونے کے بعد یہ فتویٰ جاری ہوا ہے۔ ہفتے کے روز یوپی پولیس نے ریاست کے نئے اینٹی کنورژن قانون کے تحت پہلا مقدمہ درج کیا ہے۔ یوپی تعلیمی بورڈ کی طرح ہی یوپی مدرسہ بورڈ نے بھی اپنے سالانہ امتحانات وقت پر کرانے کا اشارہ دیا۔ آن لائن نصاب مکمل کرانے کے ساتھ ہی یوپی مدرسہ بورڈ کی طرف سے سالانہ امتحانات اپنے وقت پر کرانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ مدرسہ بورڈ کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کے دوران مدارس کے طلبہ کو آن لائن کلاسز کے ذریعے نصاب کو مکمل کرا دیا گیا ہے۔ اعلیٰ افسران کا کہنا ہے کہ مدرسہ بورڈ منشی، مولوی اور عالم کے امتحانات اپنے مقررہ وقت پر کرانے کی تیاری کر رہا ہے۔ واضح ہے کہ یوپی مدرسہ بورڈ کے سالانہ امتحانات فروری اور مارچ کے درمیان کرائے جاتے ہیں۔ اس بار لاک ڈاؤن اور کورونا کے چلتے مدارس کے ذمہ داران نے سالانہ امتحانات کو لے کر اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ مدرسہ شکشا پریشد سے اس سمبند میں ابھی کوئی نردیش نہیں آیا ہے، پھر بھی لاک ڈاؤن کے اترکت آن لائن کلاسز کی پرمیشن دی گئی تھی اور کچھ مدرسوں نے جو اسٹوڈنٹ مدرسے ہیں جہاں بچے اپلبدھ تھے ان کو اپنا کلاس چلا رہے ہیں، اور میرے خیال سے سمے سے ہی پریکچھائیں ہوں گی، کیونکہ آگے بڑھانے سے ایسا کوئی نہیں بند میں دیکھتا کہ بہت فائدہ ہوگا، تو پریکچھائیں معروف عالم دین مولانا کلب صادق مرحوم کے تعلیمی مشن کو فروغ دینے اور ان کے نامکمل خوابوں کو تعبیر عطا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ ان خیالات کا اظہار آج رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ خامنئی کے خصوصی وفد کی قیادت کر رہے عالم دین مولانا مہدی مہدوی پور نے لکھنؤ میں کیا۔ پیش لکھنؤ سے طارق قمر کی یہ رپورٹ۔ مولانا کلب صادق کی رحلت کا غم پورے ملک اور پوری دنیا میں منایا گیا۔ اسی تسلسل میں ایران کے 3 رکنی خصوصی وفد نے رہبر معظم آیت اللہ خامنئی کا تعزیتی پیغام مولانا کلب صادق کے اہل خانہ اور قربا کو پیش کیا۔ مہدی مہدوی پور نے کہا کہ اہل ایران مولانا صادق کے تعلیمی مشن اور تحریک اتحاد سے بے انتہا متاثر ہیں۔ ان کے عظیم کارناموں کو یہ دنیا فراموش نہیں کر سکے گی۔ امروز ما آمدیم به لکنو برای اینکه سلام مخصوص رهبر عالی قدر انقلاب حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای حفظه الله رو به خانواده محترم ہمارے یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ رہبر معظم انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت اللہ العظمی سید علی خامنئی متظل عالی کی طرف سے ہم ان کا خاص پیغام، ان کا سلام اور تعزیت پیش کرنے کے لیے ڈاکٹر کلب صادق صاحب کے خانواد محترم اور فرزندان اور تمام اعزاء اقربا کی خدمت میں پہنچے ہیں کہ رہبر معظم کا سلام خاص اور ان کی طرف سے تعزیت اور قرصہ ان تمام حضرات کو پیش کریں۔ ہمارا آنے کا مقصد اصل یہی ہے۔ اس موقع پر مولانا کے فرزند ڈاکٹر کلب نوری نے وفد کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ صرف اہل ایران ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگ رہبر معظم کی بصیرت، ان کے خیال و افکار اور نظریات سے استفادہ کر رہے ہیں، اور ہم بھی مرحوم والد کے تعلیمی مشن اور اتحادی تحریک کو فروغ دینے کے لیے رہبر معظم کے نظریات سے رہبری اور رہنمائی حاصل کریں گے۔ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ ہمارے والد بھی رہبر معظم کے انتہائی معتقدین میں تھے، اور ان کی شخصیت ہی ایسی پرکشش ہے اور ایسی آفاقی شخصیت ہے کہ ہر مذہب اور ہر مسلک کے انصاف پسند جو عوام ہیں وہ ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ ہم سب ان کی بے انتہا عزت اور تعظیم کرتے ہیں اور ان کی گائیڈ لائنز کو فالو کرتے ہیں، ان کی رہنمائی کو فالو کرتے ہیں، اور خاص طور سے اتحاد امت کے لیے جو ان کی عظیم قربانیاں ہیں ان سب کو ہم ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اور سراہتے ہیں، اور انشاءاللہ ان کے نظریات، ان کے افکار، ان کے تھاٹس اور ان کی آئیڈیالوجی جو ہے اس کو ہم نے پہلے بھی فالو کیا ہے اور آگے بھی ہم فالو کرتے رہیں گے۔
मौलाना कल्बी सादिक को सही खराज अकीदत भी यही है कि उनके वो सभी ख्वाब शर्मिंदा ताबीर किए जाए जो उनके रहलत के सबब पूरे नहीं हो सके हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। मौलाना कल्बी सादिक के ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करने और उनके तालीमी मिशन को नई समत व रफ्तार देने के लिए इनकलाब इस्लामी के हामी व रहबर मौज़म आयतुल्लाह ख़ामनई के अफ़कार से इस्तिफ़ादा किया जाएगा। इन ख़यालात का इजहार लखनऊ में मौलाना कल्बी सादिक के फ़र्जंद ने हमारे नुमाइंदे तारिक कमर से बात करते हुए किया। वाज़ेह के इजहार ख्याल से काबिल डॉक्टर कल्बी नूरी ने आयतुल्लाह ख़ामनई के नुमाइंदे मेहदी मेहदवीपुर से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया था। मोहतरम नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मारूफ शख्सियत डॉक्टर कल्बी नूरी साहब मौजूद हैं। आप डॉक्टर कल्बी सादिक साहब के साहबजादे भी हैं और उस मिशन और उस तहरीक को आगे बढ़ाने के ख्वाहां हैं जो कल्बी सादिक साहब ने अपनी ज़िंदगी में शुरू की थी। आज बहुत अहम लोगों से मुलाकात थी। मुलाकात का बुनियादी मकसद क्या था और वो तहरीकात कैसे आगे बढ़ाएंगे, वो ख्वाब कैसे शर्मिंदा ताबीर करेंगे जो अधूरे रह गए हैं मौलाना की रहलत के बाद। ज़ाहिर है कि इस वक्त हम लोग का जो ज़हनी कैफियत है वो मुस्तहकम नहीं, इतना बड़ा सदमा जो पूरी मिल्लत के लिए, पूरे उम्मत इस्लामिया के लिए, और आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में किस तरीके से गम मनाया जा रहा है। तो आयतुल्लाह ख़ामनई साहब के हुक्म पर उनके नुमाइंदे यहाँ पे तशरीफ़ लाए और दोबारा ताज़ियत के लिए आयतुल्लाह सिस्तानी जो हमारे सबसे अजीम मराजे हैं उनका भी फ़ोन आया था, उनके दफ्तर से फ़ोन आया था। तो ऐसी शख्सियतें कभी कभी पैदा होती हैं कि हर दिल गमगीन है, हर आग जो है उसे आंसू निकल रहे हैं। तो अब हम सबको जो करना है उनके मिशन को आगे बढ़ाना है और जो उनकी खिदमात हैं उसको आगे बढ़ाना है। बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं है, अल्लाह की तौफीक होगी तो हम सब पूरी ईमानदारी, अमानतदारी, दयानतदारी और खुलूस के साथ डॉक्टर कल्बी सादिक साहब की इल्मी तहरीक को, समाजी तहरीक को और इत्तेहाद की तहरीक को इंशाअल्लाह आगे बढ़ाएंगे। वो खला तो पूर्ण नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश करेंगे कि कुछ हद तक वो खला पूर्ण हो सके। रहबर मौज़म के जो ख्यालात और अफ़कार हैं उनसे किस अंदाज से इस्तिफ़ादा करेंगे और क्या वाकई ईरान का ताउन रहेगा इस बाब में, इस मिशन को पूरा करने में, इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने में? रहबर मौज़म इंतहाई विज़नरी इंसान है, इंतहाई बाबसीरत, इंतहाई ज़हीन, और आप देख रहे हैं किस तरीके से वो न सिर्फ ईरान बल्कि एक तरह से तमाम उम्मत मुस्लिमा की बाखूबी रहबरी फरमा रहे हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि वो अल्लाह के अलावा न किसी सुपर ताकत से डरते हैं, न किसी मुल्क से डरते हैं, आँखों में आँखें डाल कर बात करते हैं। तो उनकी क़यादत अजीम है, उनकी ज़हानत अजीम है, उनकी आइडियोलॉजी अजीम है। उससे न सिर्फ हम इस्तिफ़ादा कर रहे हैं बल्कि दुनिया के मुसलमान इस्तिफ़ादा कर रहे हैं और इंशाअल्लाह उनकी क़यादत में उनके अफ़कार की हम लोग तासीर और पैरवी करेंगे। शुक्रिया। ये थे जनाब डॉक्टर कल्बी नूरी साहब जिन्होंने कहा है कि उस मिशन को पूरा किया जाएगा जो डॉक्टर कल्बी सादिक साहब का मिशन था। वो तमाम तार ख्वाब शर्मिंदा ताबीर करने की पूरी कोशिश की जाएगी जो उनकी रहलत के सबब अधूरे रह गए हैं। तो हमारी भी यही ख्वाहिश है, यही दुआ है कि वो मिशन पूरा हो, वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हों जो किसी सबब से अभी तक पूरे नहीं हो पाए थे। कैमरामैन सरजीत के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर। कानपुर के अनवरगंज थाना इलाके में 23 नवंबर की रात गैर कानूनी तौर से बन रहे ज़ेर तामीर मकान के बगल की इमारत ज़मीन बोस हो गई थी, जिसमें कई अफराद दब गए थे और एक की मौत हो गई थी। उस मकान में 23 ख़ानदान क़याम पजीर थे, जिसमें तकरीबन 68 लोग रहते थे। अब वो सड़क पर रहने को मजबूर हैं। ज़िला इंतज़ामिया ने मकान गिरने के एक दो दिन तक उनसे मुलाकात की और उनसे कई वादे किए, लेकिन अब तकरीबन 10 दिन गुजर जाने को है, मगर मुतासरीन अपने बच्चों और बुजुर्गों के साथ बेसहारा सड़क पर रहने को मजबूर हैं। इस मामले पर योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट भी किया था और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत भी दी थी, लेकिन इन बेघर और बेसहारा लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। 23 नवंबर की रात एक इमारत ढह गई, जिसमें एक की मौत भी हुई। बगल में हो रहे अवैध निर्माण के कारण यह इमारत ढह गई और जिसका संज्ञान स्वयं मुख्यमंत्री ने भी लिया। मुख्यमंत्री ने इस पर ट्वीट किया और दोषियों पर कार्रवाई की बात कही, लेकिन जिस तरह से देखा जाए ये कार्रवाई चल रही है, आज 7 दिन हो गए हैं। यहाँ पर तकरीबन 23 परिवार इस बिल्डिंग में रहते हैं और आज सड़क पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये परिवार यहाँ पर
एक तरह से कहा जाए कि धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। अगर अधिकारियों की बात की जाए तो अधिकारी केवल 2 या 3 दिन यहाँ पर आए, इनकी जानकारी ली और इनसे पूछताछ की, उसके बाद यहाँ कोई भी नहीं आया, ना ही कुछ खाने को है ना कुछ पीने को है। उसके बावजूद ये परिवार यहाँ बैठे हैं और यहाँ किसी प्रकार का कोई आश्वासन भी नहीं दिया गया है कि उन्हें किस तरह से अब कहाँ रहना है, किस तरह से मकान मिलेंगे। हालांकि कागजों पर इसकी कार्रवाई हुई और बात हुई कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन्हें मकान दिए जाएंगे, लेकिन अब तक इनके पास कोई नहीं आया। आइए इनसे बात करते हैं कि किस तरह से क्या हुआ था और उसके बाद अब जब प्रशासन आप लोगों से किस तरह से बात कर रहा है, कुछ बात करी या नहीं। आप लोग ऐसे बैठे हैं? प्रशासन ने कोई बात नहीं करी अभी तक, कोई आश्वासन नहीं है अभी तक लग जो है, और बस हम लोग सड़क पे बैठे हुए हैं। और जो है अमिताभ वाजपेयी जी प्रदर्शन कल है, यहाँ पे जो है प्रदर्शन करेंगे जो है। ये बताइए क्या आपसे प्रशासन या डीएम या कोई अधिकारी नहीं, कोई अधिकारी नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया, ना किसी ने कोई आश्वासन दिया। बताइए क्या कोई अधिकारी ने, किसी ने भी, डीएम कलेक्टर कोई ने भी नहीं पूछा कि तुम लोगों की क्या पोजीशन है, कहाँ रह रहे हो, कहाँ मर रहे हो, कोई नहीं पूछा। छड़ देने की कोई बात नहीं? नहीं, कोई ना घर की ना मुआवजे की कोई बात ही नहीं है इस प्रकार की। किस तरह से खाना खा रहे हैं आप? खाना हम तो सरकार भेज रही थी, लेकिन हम लोगों ने नहीं लिया, मना कर दिया कि नहीं, हमें नहीं खाना है खाना, बेकार है। क्या मांग है आपकी? क्या हमारे हमको मुआवजा दिया जाए, हमको मकान दिया जाए, रहने की जगह दी जाए। हाँ, रहने की जगह। जिस तरह से देखा आप, किस तरह से इन्होंने लोगों ने बताया कि इन्हें आवास नहीं मिला है और इन्हें एक अपने सर पर छत चाहिए। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। कानपुर के हीरागंज इलाके में फर्नीचर गोदाम में आग लग गई। आग लगते ही इलाके में कोहराम मच गया। बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने की वजह नहीं मालूम हो सकी है, ताहम लाखों के नुकसान का अंदेशा है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने अपने कोरोना मरीजों के हवाले से नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों में अब बुजुर्ग, बच्चे और हामिला खवातीन शामिल नहीं होंगी। दरअसल योगी हुकूमत के हुक्म के मुताबिक बुजुर्ग, बच्चे और खवातीन अगर मुतासर होते हैं तो उनकी क़ुव्वत मदाफ़त कम होती है, जिससे उनका इलाज बेहतर होम आइसोलेशन में नहीं हो पाता है। इसलिए ऐसे लोगों को अस्पताल में ही इलाज कराना होगा। इससे कोरोना से हो रही अमवात के आदाद शुमार पर भी फ़र्क पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री हमारे सूबे के जो योगी आदित्यनाथ जी हैं वो मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं, उसके अच्छे परिणाम भी कोरोना में मिल रहे हैं। यूपी में जिस प्रकार से कोरोना बढ़ रहा था उस पर उन्होंने जो कदम उठाए हैं, मीटिंग की, उसके सार्थक परिणाम मिल रहे हैं। और इन्होंने जैसे बुजुर्ग लोगों के लिए, बच्चों के लिए और गर्भवती महिलाओं के लिए बोला, इसका हम चिकित्सकगण स्वागत करते हैं। बस माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि कुछ विशेषज्ञ चिकित्सकों की ऐसी टीम लगा दें कि वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध हो सके, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, गर्भवती महिलाओं की, छोटे बच्चों की, बुजुर्ग लोगों की, किसी को डायबिटीज़ होती है, किसी को ब्लड प्रेशर होता है। तो उस प्रकार के समस्त संसाधन और समस्त चिकित्सा सुविधाएं होनी चाहिए। पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर पल्स ऑक्सीमीटर होने चाहिए, डॉक्टर्स की टीम होनी चाहिए, दवाएं होनी चाहिए, उनकी देखरेख होनी चाहिए, उनकी प्रॉपर केयर होनी चाहिए। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश में होम आइसोलेशन की इजाज़त दे दी गई थी, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने इस इजाज़त में कुछ बदलाव किए हैं, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं अब होम आइसोलेशन में नहीं रहेंगी। ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि ऐसे लोगों को बेहतर इलाज मिल सके, क्योंकि ऐसे लोगों की इम्यूनिटी पावर काफ़ी कम हो जाती है, जिससे मौत हो जाती है। कहीं ना कहीं मौत के आंकड़ों को रोकने के लिए ऐसा फैसला सरकार ने लिया है, जिसमें ऐसे लोगों को अस्पताल में इलाज दिया जाएगा। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। दिल्ली में जारी किसानों की तहरीक का दायरा मुसलसल बढ़ रहा है। आज अलीगढ़ में राष्ट्रीय लोक दल के कारकुनान ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए एक अर्जदाश्त सदर जमहूरिया हिंद के नाम जिला इंतजामिया को पेश की। इस मौके पर लोक दल कारकुनान ने किसानों की हिमायत का भी ऐलान किया। ज़राए कानून के खिलाफ दिल्ली की सरहदों पर मौजूद हरियाणा और पंजाब के किसानों के साथ उत्तर प्रदेश का किसान भी जुड़ रहा है। खास तौर पर मगरबी उत्तर प्रदेश से किसान आंदोलन से वाबस्ता तंजीमों के अलावा रिटायर्ड फौजी और जवान भी हिमायत के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। आज मेरठ से किसानों के साथ ऐसे ही कई अफराद भी किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना हुए हैं। मरकजी हुकूमत के ज़राए कानून के खिलाफ एकजुट हो रहे किसानों और जवानों का यही मुतालबा है कि या तो इस कानून को वापस लिया जाए या फिर इसमें तरमीम की जाए।
علی گڑھ بار ایسوسیشن کے ذمہ داران نے آج پریس کانفرنس کر کے آئندہ الیکشن کے لیے شیڈول جاری کر دیا۔ اس دوران موجودہ تنظیم کے ذمہ داران نے الیکشن آفیسر کے نام کا بھی اعلان کیا۔ نومنتخب الیکشن افسر نے بتایا کہ ان کی ترجیحات غیر جانبداری سے الیکشن کرانا ہے۔ ایسوسیشن آف مسلم ڈاکٹرز کے زیر اہتمام پٹنہ میں ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ مسلم طالبات کو ڈاکٹر بنانے کی مہم کے ساتھ ایسوسیشن نے رہائشی کوچنگ کا پروگرام شروع کیا تھا۔ ایسوسیشن کی کوچنگ سے 12 طالبات کو نیٹ کے امتحان میں کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ اس موقع پر ایسوسیشن نے طالبات کی کامیابی پر انہیں مبارکباد دی، ساتھ ہی آئندہ سال سے پٹنہ سمیت دوسرے صوبوں میں بھی مسلم طالبات کے لیے کوچنگ شروع کرنے کا اعلان کیا۔ ایسوسیشن آف مسلم ڈاکٹرز کے لیے موقع کافی اہم ہے۔ گزشتہ سال مسلم ڈاکٹرز کی ٹیم نے مسلم طالبات کو ڈاکٹر بنانے کی مہم شروع کی تھی۔ ایسوسیشن کے پہلے بیچ میں 15 طالبات نے داخلہ لیا تھا۔ ایک سال کی کڑی محنت سے ان 15 طالبات میں 12 طالبات کو کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ ایسوسیشن کے ذمہ داروں نے خوش ہو کر اس سال سے 40 طالبات کو رہائشی کوچنگ کرانے کا اعلان کیا ہے۔ یہ 15 میں سے 11 بچوں کو ہم لوگ 9 کا تو ایڈمیشن ہو گیا، ایک ایمس میں ہوا، ایک IIMS میں ہو جائے گا، PMC میں ہو جائے گا، تو یہ کتنی بڑی بات ہے اس حساب سے، اور یہ ہم نے کبھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا اس کو، سچی بات ہے۔ یہ اللہ کا خاص احسان ہے کہ اتنا سکسیسفل اچھا رہا۔ ڈاکٹر بننا مسلم طالبات کے لیے ایک خواب جیسا ہے۔ معاشی رکاوٹ کے سبب میڈیکل کی تیاری کرنے میں عام طور پر گاؤں میں رہنے والی لڑکیاں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ معاشی اعتبار سے کمزور طالبات کو ایسوسیشن موقع دینے کی بات کرتا ہے۔ دینی ماحول میں میڈیکل کی تیاری کر کے نیٹ میں کامیاب ہونے والی لڑکیوں کا حوصلہ بلند ہے۔ اسٹڈی بالکل انہیمپرڈ ہی چلتی رہی، اور اس کے بعد مطلب ایگزام تو ایگزام، اس کے بعد کاؤنسلنگ جو کہ بہت کمپلیکیٹڈ پروسیس ہوتی ہے نیٹ کی کاؤنسلنگ، اس میں بھی کافی اچھی گائیڈنس ملی ہم لوگ کو۔ ٹیچرز بھی کافی اچھے تھے، بہت سپورٹیو تھے اور بہت زیادہ ہمیشہ گائیڈ کرتے تھے، کبھی بھی دوسرے کو دیکھنے نہیں بولتے تھے، ہمیشہ بولتے تھے لاسٹ ٹیسٹ میں دیکھو خود کا کتنا ہے اور آگے کے ٹیسٹ میں اس سے اوپر کرنے کی۔ ایسوسیشن آف مسلم ڈاکٹرز کے صدر کے مطابق ان کی ٹیم نے یہ سوچا نہیں تھا کہ 15 میں سے 12 طالبات کو کامیابی حاصل ہوگی۔ طالبات کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے ایسوسیشن پٹنہ کے علاوہ رانچی اور دہلی میں رہائشی کوچنگ کی شروعات کرنے جا رہا ہے۔ ہم لوگ اگلے سال ہم رانچی میں شروع کر رہے ہیں، دہلی میں ہم لوگ شروع کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اور جہاں سے ہم لوگوں کو آفر آ رہا ہے اس میں ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو 28-29 اسٹیٹس ہیں، سب اسٹیٹ سے ہم لوگ پروڈیوس کریں۔ ایسوسیشن آف مسلم ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ وہ ملک کے تمام مسلم ڈاکٹرز کو ایسوسیشن سے جوڑنا چاہتے ہیں تاکہ آئندہ سال سے مسلم طالبات کے ساتھ ساتھ معاشی اعتبار سے کمزور مسلم طلبہ کو بھی ڈاکٹر بنانے کی کوشش کی جا سکے۔ ایسوسیشن کا کہنا ہے کہ اس سمت میں ان کی کوشش شروع ہو گئی ہے۔ ایسوسیشن کے مطابق تعلیم کے بغیر مسلمانوں کی خستہ حالی کو دور کرنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ نیوز 18 اردو کے لیے پٹنہ سے محفوظ عالم کی رپورٹ۔ بہار کی موجودہ حکومت اردو نواز نہیں ہے، یہ کہنا ہے امارت شریعہ بہار کا۔ امارت نے TET اردو پاس امیدواروں کے مسئلے کو حل کرانے کی اپیل کی ہے۔ امارت کا کہنا ہے کہ ایک طرف حکومت اردو کے امیدوار نہیں ملنے کا رونا روتی ہے، جبکہ دوسری طرف TET اردو پاس امیدوار بحالی کے انتظار میں اپنے دن کاٹ رہے ہیں، لیکن اس تعلق سے حکومت کی جانب سے کوئی کوشش نہیں کی جا رہی ہے۔ نئی سرکار بن گئی ہے، کاموں میں تیزی آنی چاہیے، اور جو اقلیتی مسائل ہیں ان کے سلسلے میں بھی حکومت کو تیزی سے اقدام کرنے چاہیے۔ جیسے بہت دنوں سے TET پاس اردو والوں کا مسئلہ پھنسا ہوا ہے، اور حکومت نے بار بار ان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ یہ ہو جائے گا، اور اسی امید میں وہ لوگ ہیں۔ تو TET پاس امیدواروں کا مسئلہ ہے، اردو کو ہر اسکول میں لازمی سبجیکٹ کی حیثیت سے شامل کرنے کا مسئلہ ہے۔ جو اقلیتی ادارے ہیں اور وہاں اب تک ذمہ دار نہیں متعین ہیں، ان کے ذمہ دار متعین کرنے کا مسئلہ ہے۔ تو ان تمام مسئلوں پر حکومت کو فوری طور پر اقدام کرنے چاہیے، تاکہ نئی حکومت سے جو توقعات اور امیدیں لوگوں نے وابستہ کر رکھی ہیں اس پر وہ حکومت۔
उधर मुस्लिम वजीर के मामले पर ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के कौमी सदर और साबिक MP अली अनवर ने कहा कि मुसलमानों को वजारत में जगह दिलाने की मांग गैर ज़रूरी मुद्दा है। अली अनवर का कहना है कि मुसलमानों के मसले को हल कराने के ताल्लुक से हुकूमत पूरी तरह लापरवाह रही है। अली अनवर का कहना है कि नीतीश कुमार सुशासन का दावा करते हैं तो अक़लियतों के बुनियादी मसाइल को हल करें। देखिए, पहली बात तो ये कि लोग मांग कर रहे हैं कि एक मुस्लिम वजीर होना चाहिए। हो सकता है कि एक्सपेंशन जो होने वाला है मंत्रिमंडल का उसमें किसी को रख लें, लेकिन वो उसका कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी एक वजीर है ना, क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या करते हैं, तो उसी तरह से इससे क्या होने वाला है। असल बात यह है कि इनकी नीतियाँ। माना जा रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार की काबीना की जल्द तौसी होगी। इसको देखते हुए मुस्लिम वजीर बनाने का मुतालबा जोर पकड़ने लगा है। वाज़ेह कि नीतीश की काबीना में एक भी मुस्लिम वजीर नहीं है। इमारत शरिया बिहार के नायब नाजिम मुफ्ती सनाउल हुदा कासमी का कहना है कि हुकूमत में मुसलमानों की नुमाइंदगी को यकीनी बनाया जाए। वहीं बिहार उर्दू टीचर्स एसोसिएशन ने मांग की है कि कम से कम 2 मुस्लिम वजीर बनाया जाए। हाँ, ये शायद पहला मौका है, मुझे बहुत पूरी तारीख़ नहीं महफूज, कि कैबिनेट में कोई मुस्लिम वज़ीर नहीं है, लेकिन जाहिर है कि जो वजारत बनी है ये आखिरी नहीं है, इसमें तोसी होनी ही है और होगी, तो उसमें इसकी कोशिश होनी चाहिए कि कोई मुस्लिम चेहरा जो इंतहाई फ़ाल हो उसे वज़ीर बनाया जाए, ताकि मुसलमानों की नुमाइंदगी भी कैबिनेट में रहे। और जब वज़ीर आला तक जो है विधान परिषद से जा सकते हैं, तो हम नहीं समझते कि विधान परिषद से में जो 7 MLC हैं उनमें से किसी को भी वज़ीर बनाया जा सकता है जो हुकूमत के लिए काम में तेज़ी ला सके और मुसलमानों के मसाइल को पूरे तौर पर उठा भी सके। ऐसे को वज़ीर बनाना चाहिए। देखिए, नीतीश जी ने जो अपनी काबीना की तश्कील दी, तो फर्स्ट फेज़ में तो उन्होंने किसी मुस्लिम वज़ीर को शामिल नहीं किया, लेकिन जितनी बड़ी आबादी है यहाँ और जिस तरह से नीतीश कुमार को वोट दिया है या उसका साथ देते रहे हैं, तो नीतीश कुमार को संजीदगी से सोचना चाहिए। और अब अगर वो अपने एक्सपेंशन करते हैं कैबिनेट का, तो उनको कम से कम 2 वज़ीर ज़रूर मुसलमान बनाना चाहिए। और इससे मुस्लिम जो आबादी है उसमें भी कॉन्फिडेंस पैदा होगा, उनको भी लगेगा कि हमारे बारे में बिहार में नई हुकूमत बनने के बाद नीतीश कुमार थोड़े बदले नजर आ रहे हैं। हुकूमत ने तरक्याती कामों की ज़मीनी हकीकत जानने के लिए आला अफसरान को हिदायत दी गई है। सरकार के चीफ सेक्रेटरी संजय कुमार की जानिब से अफसरों को ख़त भेजा गया है, जिसमें हिदायत दी गई है कि वो अजला में जाकर तरक्याती कामों का जायज़ा लें और 4 दिसंबर तक रिपोर्ट करें। नीतीश कुमार सत्ता संभालने के बाद पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं सचिवालय की, जहां पे बिहार सरकार के तमाम बड़े आला अधिकारी बैठते हैं और जाहिर सी बात है पूरे बिहार में विकास की स्थिति क्या है यहीं से तय होता है। इस बार विकास कार्यों की जमीनी हकीकत क्या है, इसको जानने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि आप संबंधित जिलों में जाएं और विकास कार्यों की असली स्थिति क्या है उसकी पूरी जानकारी मुख्यमंत्री सचिवालय तक पहुंचाएं। इस वक्त हमारे हाथ में एक लेटर है। संजय कुमार जो सरकार के प्रधान सचिव हैं, उन्होंने तमाम सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव को लिखा है, जिसमें विभागीय सचिव को आवंटित जिलों के भ्रमण एवं उन जिलों के कार्यों की समीक्षा कर प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु विहित प्रपत्र तैयार करने के संबंध में। यानी कि इसमें साफ साफ है कि कई सारे अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो तमाम जिलों में जाएं और वहां पे सरकार के तरफ से जो विकास कार्य चलाए जा रहे हैं उनकी अद्यतन स्थिति क्या है उसकी जानकारी 4/12/2020। देखिए, हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। योजनाओं कार्यक्रमों की प्रकृति के अनुरूप निदर्शन हेतु विहित प्रपत्र हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में तैयार कर दिनांक 4/12/2020 तक उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। सरकार के प्रधान सचिव संजय कुमार, यानी कि अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि आप तमाम जिलों में जाएं और सरकार के विकास कार्यों की जमीनी हकीकत क्या है उसकी पूरी जानकारी सरकार तक पहुंचाएं। और इसके लिए जो डेट मुहैया कराया गया है 4/12/2020, यानी कि नीतीश कुमार
जब विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे तो उन तक तमाम अधिकारियों की तरफ से जमीनी हकीकत क्या है उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।